What's up, guys? This is Guru Man, right in front of you. You all looking awesome. Oh, wow. Thank you very much. Your name? Madhu Singh. Madhu Singh. Thank you very much, Madhu. Really appreciate your love and support. How was it, guys? I'm gonna stand now. मैं खड़ा था, आप बैठे रहो. All good? How was your breakfast, by the way? How many people skipped breakfast? You guys skipped breakfast? Why? कहाँ से आए आप? बैंगलोर से हैं. वाह. जब ब्रेकफास्ट स्किप हो, बनाना है ना, बैग में होना चाहिए, चाहे कहीं फ्लाई कर रहे हैं. It should be in your bag. All right? Perfect. Next time, banana, have some carb, no problem. और कहाँ से और कौन था? Who skipped breakfast? From where are you from? It's Saturday. Traffic भी नहीं है ना? अरे यार. Breakfast ना skip करो. That's very important. That's going to slow down the metabolism. And वो इंजन है आपकी बॉडी के अंदर. Burn calories. Right? Okay. Hello. Love you too. I love you too. Thank you very much for love and support. We have a mission. We have a mission to Mission Fit India. You know, this is something I have a dream for that. You know, there's no cost involved. We need a support. We just hand by hand want to travel forward. Want to make sure we'll help our community, right? That is a very important part. And you know, this is अभी सभी के पास बैचलर्स और मास्टर होगी, कर रहे होंगे. You know, we have. अमेरिका में जाएं, लोगों के पास बैचलर्स नहीं है, but they have a nutrition information. They have knowledge of nutrition. चाहे वो 90 साल का बुजुर्ग है गोरा, still knows everything about what is multivitamin. We don't know. Lack of knowledge. You know, so that's something I want to create. I want to help. I want to make sure you guys should know that. Learn, you know, read books, whatever. Not Google. Google is. Google के पास बहुत ज़्यादा information भी है, कम भी है. Anybody can blog and you can read, you can believe in that part. अगर पढ़ना है तो Wikipedia, right? क्योंकि Google के अंदर क्या है? He can blog, मोहित can blog. क्या मोहित ने कहीं आर्टिकल पढ़ा, अपनी वेबसाइट डाल दिया. आपने गलती से सर्च किया, उसका पढ़ लिया. वो information आपने आगे पास कर दी. There's no truth behind that part. There should be a science behind. जब 9th grade के अंदर, 8th grade के अंदर, मैं भी यहां था बाय द वे. सो उस ग्रेड के अंदर साइंस की बुक होती थी ना, उसके अंदर होता है बायोलॉजी का, न्यूट्रिशन, व्हाट इज प्रोटीन, विटामिन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माल न्यूट्रिशन. प्रोबब्ली यू गाइस नो दैट. दैट्स एवरीथिंग इन साइंस. वही सभी पढ़ रहे हैं, पढ़कर आगे गए हैं, चाहे दुनिया किसी कंट्री में. दैट्स साइंस. समवन 200-300 साल पहले जिसने वो बनाया, वही सभी पढ़ रहे हैं. वो साइंटिस्ट वही चीज पढ़कर जाते हैं. दैट्स अ बुक. उस पर ट्रस्ट करना हमने, राइट? नॉट कि किसी ने बता दिया एंड विदाउट एनी इंफॉर्मेशन. या बहुत जगह पास नॉलेज है बिना किसी डिग्री के. दैट्स ऑसम. बट मेक श्योर जो नॉलेज आपके पास है, इज दिस साइंस बैकअप बिहाइंड दैट? यू नो, दैट्स इंपॉर्टेंट. बिकॉज कभी आप इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो किसी को, मेक श्योर शुड बी राइट, करेक्ट इंफॉर्मेशन. यू नो, सो यू आर लुकिंग गुड, ऑल यंग, सभी हेल्दी लग रहे हैं. एनीबडी ओवरवेट राइट हियर? You're still fine. Yeah, but you're not that much. I don't see that. Maybe you have that inside, but it's fine. But I'm really proud कि आपने हाथ ऊपर किया. Embarrass नहीं करना. नहीं, embarrass नहीं. Everybody has. आप 2 साल बाद देखो, you'll be a different person, right? Everybody start from somewhere. कोई skinny था, कोई overweight था. हर एक का कोई ना कोई है. Nobody born like aesthetic, right? So you're gonna work hard, whatever the goals are. Yeah. Focus on your nutrition. That's everything. First thing is nutrition, 80%. And then we go out, work out, then supplementation. But the first thing is nutrition. And some people try to go out first and try to get those things. It's not going to work. Supplement and work out. No, that's just 4%. Workout is 4%. 1 hour workout is 4% a day. Total is 10%. 80% your workout. 80% nutrition, 10 workout, and 10% supplementation. Very important. उसकी भी स्टडी होनी चाहिए, right?
Motivation is something very important for every single person. You want to be a doctor, engineer, you want to be an actor, director, you want to be a cricketer, basketball player, whatever. You want to go and compete in Olympic, anything, model, or you want to be best in terms of whatever you're looking for. That motivation is very important. That's like a shower. You take shower every day. नहाने के लिए, that's a motivation. Every day you need motivation. एक दिन motivation नहीं मिली, the day will go down. You see, man, आज का दिन खराब है. Or you're tired. Or you do something which you don't want to do. You eat bad food, go to bar, maybe smoke, maybe something else. So ये जो motivation है बहुत ही जरूरी है. ये video failure is an option, एक script लिखी हुई है. I think आप सुनेंगे इसको repeat कर दोबारा, तो आपको समझेगा क्या उसके अंदर. उसके अंदर एक स्टोरी है किसी की, आप में से किसी भी हो सकती है, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ बनने के लिए एंड दे गेटिंग फेल्ड. कुछ सुनने को आता नहीं यार दिमाग खराब है, ये बंदा नहीं ठीक, बट यू हैव अ कॉन्फिडेंस टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, राइट? बट समाज, आपके घर में फ्रेंड्स, फैमिली, मे बी समवन से नो इट्स नॉट वर्क, राइट? एनीबडी, you know all the successful people, all the unsuccessful people. Successful has so many unsuccessful years behind. Steve Jobs and those Edison, Thomas, जिसने बल्ब चलाया, एक हजार बार फेल हुआ वो बनाता गया. जिसने एरोप्लेन, वो कौन से ब्रदर थे? यस. तो कितना फेलियर उसके पीछे, वो नहीं किसी को मालूम. किसी सेलिब्रिटी को उठा लो, अमिताभ बच्चन उठा लो, फेलियर इज देयर. एवरीबडी. हम सक्सेस देखते हैं, आपको मेरा फेलियर नहीं मालूम किसी का. हाँ, वो माई स्टोरी में थोड़ा बताया वो मैंने. हाँ, मेरा ओके, या दैट्स व्हाट आई एम जस्ट हियर फॉर. सो वो मोटिवेशन चाहिए, वो हर एक को चाहिए. हर एक की लाइफ में को फेलियर है, कुछ बनने जाते हैं, वो उसका मेरे वीडियो का ये है कि मैसेज इज कीप गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, यू वांट टू बी समथिंग, कीप गोइंग. सो इसके अंदर है कि एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव, योर स्टोरी इज नॉट ओवर. योर स्टोरी इज नॉट ओवर. जब तक जिंदा हो आपकी कहानी खत्म नहीं हुई. यू कैन राइट दैट स्टोरी, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. और वो इसके अंदर है कि इसके अंदर मेरी अपनी भी कहानी जुड़ी हुई है. People want your product but not you. It's a tough world. It's a tough world. They will keep you down, but you have to keep going. They will shut you down, but you got to keep going. कोई भी हो सकता है, anybody, anyone. Jealousy is a part of success. Big thing. और success कुछ भी हो सकता है. आप 10th में टॉप किया है, 12th में किया, यू हैव दैट, पीछे जेलसी आ रही है स्कूल में, कॉलेज में, बिकॉज यू आर जस्ट कंपीटिंग, टॉपिंग, व्हाटएवर यू वांट टू बी. आप फिटनेस मॉडल बन रहे हैं, यू हैव बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, यू कंपीटिंग विद योरसेल्फ, डोंट कंपीट विद दोस अदर पीपल. दैट्स योर फर्स्ट थिंग. एवरीबडी इन द वर्ल्ड हैज सम यूनिकनेस. आपका थंबप्रिंट अलग है, सभी का अलग है. एवरीबडी हैज अ डिफरेंट स्ट्रेंथ. योर वे ऑफ टॉकिंग, योर राइटिंग किसी की मैच नहीं करती. So you don't compare with that person. You can't compare Arnold with Hrithik Roshan. You can't compare Salman Khan with Jake Cutler. I mean, those all are individual. Usain Bolt, all are different people. Because John Ram body अच्छी है, Hrithik की अच्छी है. No, all have different body frame, different body structure. What works on you is something important. You can't say उसकी ऐसी होनी चाहिए, नहीं. You can't judge people. You can't say that उसकी ऐसी होनी चाहिए. No, that's a wrong thing. इससे बाहर आना हमने. We want to make ourselves, अपने आप को better than we used to before, right? We were before, want to make sure that we should be better. iPhone का competition जब लोग करते हैं, iPhones, क्या हो रहा है? हर साल iPhone better बन रहा है. जब कोई स्मार्टफोन है, every year improving. अगर हम हर साल अपना improve नहीं करेंगे, that's the worst thing we can do. Human, they making technology every 6 months or 1 year better. कारें, हर चीज को लेकर टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारी बॉडी का क्या है? Are we just making better investment in there? क्या हम अच्छे लग रहे हैं पिछले साल से, क्या बुरे लग रहे हैं? बुरे लग रहे हैं, what we're doing? क्या कर रहे हैं हम? We got to work on that part. We have to make. किसी ने नहीं करना, आपने खुद करना है. All right? Nobody else gonna do it, man. Not your father, mother. Keep in mind, right? But you need support, definitely. Family support is important. Your wife, your husband, it's important. लेकिन you have to do that. आपने चेंज करना है, किसी ने करना कुछ. अगर आपके मन, जो विजन आपके अंदर है ना, वो मैं आपके अंदर मैं नहीं देख सकता हूं. वो आपके अंदर, आपने एक स्केच ड्रॉ किया हुआ है. यू वांट समवेयर, आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले अपने बनना क्या है.
खुली आंखों से स्केच बनना चाहिए। वो सोए हुए ड्रीम नहीं, जागने वाला ड्रीम, दैट्स समथिंग यू नीड टू डू। सोया ड्रीम कभी हाथ नहीं आता, दैट्स यूजलेस। वो तो किसी के हाथ नहीं आती, साइंस लगी हुई है, ना खाते हैं। वो ड्रीम जो खुली आंखों से आपने अचीव करना है, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। आपने स्केच ड्रॉ करना है, हु यू आर, हु यू वांट टू बी, राइट, हु यू वांट टू बी। वो टाइम पीरियड आपको नहीं मालूम, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 50 साल, यू डोंट नो, बट यू नो दैट्स द एंड गोल। और वो स्केच आपने ड्रॉ करना है, उसको बाहर आपने बनाना है। जो आप स्केचिंग करते हैं ना, मैं आपकी स्केचिंग कर सकता हूं, आई हैव टू क्रिएट इमेज, फिर मैं बनाऊंगा। तो वो इमेज बाहर बनेगी, आपने वर्क ऑन इट, व्हाट इज दिस एक्चुअली, लेट मी फिगर आउट, लेट मी सी इफ आई कैन अचीव दिस गोल और नॉट। क्रिएटिविटी ऐसे बनती है। मैं कोई क्रिएटर नहीं हूं, बट एज बीइंग मोटिवेटर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बट या आई हैव अ मिशन इंडिया फिट, मैंने वो इमेज देखी हुई है, मुझे मालूम नहीं कितना टाइम लगेगा, बट आई हैव सीन दैट स्केच। 6 साल पहले का स्केच शुरू, 6 साल हो चुके हैं, बट नाउ आई कैन सी। और वो ऐसा बी डेस्टिनेशन नेविगेशन मुझे ये नहीं बता रहा कि कैसे जाना है, राइट। वो जो रास्ता है ना, वो आपने बनाना है, मालूम नहीं वो कैसे, किस रास्ते से जाएंगे। ये बी डेस्टिनेशन, ये आप है, ये सीधा रास्ता नहीं है। दिस इज नॉट लाइक गूगल मैप और एप्पल मैप, पॉइंट बी डेस्टिनेशन राइट, 10 hours or 10 minutes away, not gonna work. There's no time limit. There's a zigzag. There's a going back and forth. This is B destination here. You have to create a way. ये नहीं है, ये नहीं है, you have to keep going. इस पर पहुंचने के लिए वो रास्ता खुद बनाना है, that is very important. और वो कहाँ वो उसके अंदर क्या है, फेलियर, पेन, स्ट्रगल, फाइनेंशियल, फिजिकल, लॉट ऑफ थिंग उसके अंदर है। लेकिन वहां से कीप गोइंग बिकॉज यू नो व्हाट यू डूइंग, राइट। गुड थिंग बाय द वे, रॉन्ग थिंग नहीं, गुड थिंग। ये ऐसी डिग्री है फिटनेस की, मैं जो डिग्री कर रहा हूं इस समय, जो हेल्थ एंड फिटनेस, जो फिट मिशन इंडिया का गोल है, ऐसी डिग्री है, इसका मुझे ये नहीं मालूम कि कब खत्म होगी है। शुरू कर लिया, आई एम गोइंग, देयर इज नो सेमेस्टर, बट द एंड गोल इज टू सी आवर कम्युनिटी फिट। जब आप समंदर में हो और आपको मालूम नहीं है आइलैंड किस तरफ है, यूर ओनली वन कैप्टन ऑफ शिप, आप ही अकेले हो समंदर के अंदर, यू डोंट नो वेयर इज द आइलैंड, किस तरफ हूं, नथिंग एल्स। वहां पर एक होता है विजन, यू नो देयर इज आइलैंड किसी साइड, बट यू डोंट नो। वहां पर लोग होप आपका ड्रॉप होता है, वहां पर आप देखना है, चलो लेट्स गो फॉरवर्ड। महीना, 2 महीने, साल लगा, स्टिल नॉट गोना सी एनीथिंग, यू सी आई एम डन, नो, यू कीप गोइंग, देयर इज आइलैंड समवेयर। और जब धीरे धीरे आपको ब्लर दिखता है कुछ चीजें, यू सी देयर इज समथिंग, वो ब्लरनेस, दैट्स मीन यू आर जस्ट अचीविंग योर गोल्स बट स्टिल डोंट नो कितना दूर है। दैट्स हाउ द सक्सेस इज, यू गोना फील दैट, यू नो कि मैं हो जाऊंगा, आई नो दैट, आई सी समथिंग, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पीछे आने का मतलब नहीं है, पीछे भी कुछ नहीं है बेसिकली, सो यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। कहते हैं आप में हेल में हो, नर्क में हो, अंधेरा है, क्या करेंगे, यू हैव कीप मूविंग फॉरवर्ड, खड़े होकर कुछ नहीं होगा, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। हेल से बाहर निकलिए, यू हैव कीप गोइंग, कीप मूव। एक टनल नहीं होता अंधेरे वाला, क्या करेंगे आप, वेट करेंगे, कुछ नहीं होगा, यू गोना कीप मूविंग फॉरवर्ड। टनल से बाहर तभी आएंगे, रोशनी तभी होगी, कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग। वो वॉकिंग तो बहुत टफ होता है, आई नो, यू से आई एम फाइनेंशियली ब्रोक, फिजिकली ब्रोक, you know, there's so much pressure going on, my family, my wife, my kid, stuff like that, you know, that failure is, that's what we call failure, but that's not the option, because you know, once you achieve there, all these people will be successful with you. You're working for them, not for yourself. That's the one thing in your mind. You want to make sure, that is the important part. आप अपने लिए नहीं, अब किस लिए कर रहे हो, वो जो फैमिली पीछे है, you want to make their better, future better. जी सर, आपने अभी बोला कि हमें रोज मोटिवेटेड रहना चाहिए, राइट। तो मेरा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि मैं हर चीज में मोटिवेशन अपने आप ही ढूंढ लेता हूँ, तो उसकी एक आदत पड़ गई। जैसे मान लो कि अब मैं नींबू पानी पीने चला गया, राइट, तो शुगर इंटेक को भी मैं ऐसे ले, साथ में मुझे विटामिन सी तो मिल रहा है, फिर बाहर अगर धूप में चला गया तो विटामिन डी मिल रहा है, वही कभी अंडे की भुर्जी खा ली तो वो मसाला और वो सब तो ठीक है, वो आ ही रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी इतनी आ गई है ना, तो ऐसा लगता है कि चलो प्रोटीन भी आ रहा है। तो उस प्रॉब्लम से कैसे डील करें सर? तो कुछ बैड चीज आ रही है, मोटिवेशन हो जाता है सर। गुड, परफेक्ट, ऑसम। सो वो फिल्ट्रेशन आप खुद ही करोगे, वो मोटिवेशन खुद को चाहिए। आप पिक्चर देख लो किसी को, वो तो फिटनेस की पिक्चर होगी ना, आपके गोल तो और है, क्रिकेटर बनना है, आप क्या करेंगे किसी पिक्चर देखकर, वही करना सी। आप गोल्स के अकॉर्डिंग पे देखोगे ना, अगर बॉडी बिल्डर बनना वो तो देख ले, किसी आर्नोल्ड की देख ली पिक्चर, पंपिंग करते बॉडी बिल्डर, ही गॉट, ओके मैं वर्कआउट जाकर अच्छा करूंगा, ये तो फिटनेस हो गया ना, ये तो हो गया बॉडी बिल्डिंग, इंडिविजुअल गोल्स। लेकिन वो आपके जो गोल्स, अगर बॉडी बिल्डर है, दैट्स परफेक्ट, वॉच माई पिक्चर्स, मैं तो अपनी पिक्चर देख लेता हूँ पिछले,
मैं कहा यार मैन ये तो पिछले महीने की बात है, आई वाज लाइक लुकिंग बेटर, व्हाट द हेल। सो ये अपनी मोटिवेशन, हर एक की मोटिवेशन ड्रॉप होती है लाइफ में, हर एक की। और वो मैं जैसे वीडियो बनाई इसलिए बनाई कि लाइक दिस इज नॉट समथिंग फिटनेस, इट्स अबाउट सक्सेस, इट्स अबाउट यू वाना वे यू आर, हु यू वाना बी, एंड वो फेलियर उसके अंदर है। जस्ट डोंट गिव अप, कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एक ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे एक भी जिम नहीं है। सो मैंने बाहर मतलब ज्यादा एक से हिमाचल प्रदेश चंबा डिस्ट्रिक्ट। मैं समझ आता है। सो एक से ज्यादा होंगे शायद। यस, वहाँ पे एक भी जिम नहीं है, तो मैंने बाहर निकल के वर्कआउट स्टार्ट किया। हाँ जी। सो कुछ ऐसा हो गया था स्टार्टिंग में कि मेरे को लिगामेंट 4 और 5 में प्रॉब्लम आ गई थी। सो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था। सो मैंने 8 to 9 मंथ्स प्रॉपर वर्कआउट नहीं, बिल्कुल बंद कर दिया था। Okay. उसके बाद मैंने अपना वो बैक की एक्सरसाइज जो आपने भी गाइड किया था, डॉक्टर्स ने भी गाइड किया, मैंने अपनी मोटिवेशन कभी छोड़ा नहीं कि एक आप जैसे बोलते हैं कि आपने बोला था कि विजन बनाना चाहिए, मैंने एक विजन बनाया था कि मुझे उस लेवल तक पहुंचना है। सो मैंने 9 मंथ्स 8 मंथ्स बिल्कुल ब्रेक करने के बाद बैक एक्सरसाइज अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग किया। सो आज मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि नॉर्मल नहीं कर पाते हैं, कैलिस्थेनिक लेवल की होती हैं, जो एक्सट्रीम लेवल की एक्सरसाइज है वो भी कर पाता हूँ। Awesome. सो ये मेरा मोटिवेशन है। Awesome. Awesome. He mentioned a disc problem, L4, L5, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये भी। लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं वर्कआउट ना करो, व्हाट द हेल, गलत है। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर नहीं दिया नहीं, था बिल्कुल गलत है, डॉक्टर की फील्ड ही नहीं है। Right. डॉक्टर की फील्ड कहां से आके बताओ ना आप। इट्स अ मेडिसिन, इट्स अ बोन, इट्स अ हड्डी का काम है। अ डॉक्टर इज मेडिसिन। सो वो तो लास्ट पॉइंट है, जब कुछ नहीं होता डॉक्टर आपकी सर्जरी करेंगे। बेसिकली इट्स द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू मेक श्योर ब्लड उसके अंदर से पास होना चाहिए। अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा आप हील नहीं करेंगे। ब्लड फ्लो कैसा होगा? वर्कआउट से। अभी बाइसेप वर्कआउट करोगे, ब्लड फ्लो करेगा अंदर से। ब्लड कैरी ऑल द न्यूट्रिएंट्स, बताया वो मैंने, ऑल द विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। और बॉडी हील कैसे करती है? अपने आप जख्म कैसे भरता है? अंदर से जो आप खा रहे हो जो भी, वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो जब बोन प्रॉब्लम है, लिगामेंट, जॉइंट, यू हैव टू वर्कआउट, रीहैब वर्कआउट। यू कैन डू like the squats or deadlift. You're going to work out based on the blood flow the area में। cat cow stretch, ये stretching workouts है। planks, stuff like that, because you have to make sure plank में क्या होगा, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं लेकिन ब्लड इकट्ठा हो रहा है मिड में, वो चाहिए आपको, वो बहुत जरूरी है। वर्कआउट जरूरी है। इंजरी के बाद कौन सा प्लेयर है जो कहते हैं मैंने खेल घर बैठा हूं, डॉक्टर 1 महीने बोलते हैं जस्ट टू रीहैब वर्कआउट फॉर 1 2 3 4 में, डिपेंड्स ऑन कैसी इंजरी कैसी सर्जरी हुई है, नहीं तो वापस नहीं आ सकते आप। बहुत ही जरूरी है, वर्कआउट करना जरूरी है। थोड़ी सी हमारे डॉक्टर्स बहुत एजुकेटेड हैं लेकिन आई डोंट नो व्हाई दे प्रोवाइड सम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो उनकी फील्ड की नहीं है। यू नो, अगर मैं आपको कारें की इन्फॉर्मेशन बताऊं, मैकेनिकल इंजीनियर मैं नहीं हूं, कैसे बता सकता हूं? मैंने स्टडी नहीं की भाई। व्हाई वुड आई टेल यू अबाउट दोज मैकेनिकल पार्ट? या मुझे नॉलेज है, नॉलेज इज डिफरेंट देन स्टडी। वो नॉलेज मुझे किसी से सुनकर भी मिल सकती है ना, बट स्टडी इज समथिंग मैंने पढ़ा हुआ है, वो चीज पढ़ी हुई जो पढ़ाई है, जो सब लोग पढ़ते आ रहे हैं। आगे की जनरेशन जो बहुत लेवल पहुंची है, जो पीछे आने वाली वही बुक्स पढ़ रही है। अब देखा कि स्कूल में डिफरेंट बुक है, उसमें डिफरेंट साइंस, साइंस की वो चीज वही होगी। ऊपर कौन पढ़ रहा है? पढ़ते गए हैं जो लोग बड़े बड़े, चाहे इंडिया अमेरिका कहीं बैठे हुए हैं, राइट? जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम जिसमें, सो वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इंजरी हो तो हाँ, डिपेंड करता है कि किस लेवल पे, किस अगर अंदर इन्फ्लेमेशन बनी है, इन्फ्लेमेशन, जलन है, पेन है, ब्लड इकट्ठा हुआ है, सो यू डेफिनेटली गोना टेक रेस्ट, मेक श्योर यू डोंट मेक इट वर्स। बट L4 L5 की बहुत ही बड़ी कॉमन है, मैंने वीडियो बनाई थी, अगर मान ली किन लोगों ने नहीं देखी शायद, अगर आपने देखी है कोशिश करें आपकी, अगर नहीं हुई तो आगे ना हो। बहुत लोग कहते हैं मैं ठीक हूं, हेल्दी हूं, दैट्स फाइन। बेल्ट का इस्तेमाल करें, अगर पावर लिफ्टिंग नहीं छोड़ना चाहते, यूज बेल्ट। मैं बहुत डेडलिफ्ट लगाता रहा हूं 2003-4 में, बहुत ज्यादा हैवी, 220 पाउंड आई यूज्ड टू डू दैट। मेरे साथ के सारे हैवी करते थे, एंड उस समय एब्स का टाइम नहीं था, मोस्टली साइज, बट दैट अफेक्ट बैक डाउन द रोड। मुझे मालूम, उस समय मालूम नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम आज प्रॉब्लम है, पीछे कुछ साल 2-4 साल पहले कुछ हुआ है, उसका कारण आज है। ये नहीं कि कल हुआ आज हो गया ना, कुछ आज अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है, कल रात का नहीं हुआ, सालों का बन रहा है। वो पुरानी चीज है, वो कहां वहां नहीं मालूम होता किसी को। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो भी आप कर रहे हैं, कौन सा गाना है कौन सा रिंगटोन है? पंजाबी? अच्छा, एनी क्वेश्चन? सर क्वेश्चन मेरा बाद में, पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपना कैसे शुरू किया, मतलब आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि मैं ये फील्ड में आऊँ? और मुझे लगता है कि आप ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ शुरू करना चाहिए अपने आप ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ मोटिवेशन मिला कि मैं इस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ आवां? जब मैंने स्टार्ट किया ये सोच कर नहीं किया है कि मैंने कुछ करना है, कुछ बनना है। I just want to be, I was 17,
और मैं सोचा लाइक आई शुड वर्क आउट, सही टाइम पे वर्क करने। अगर हो सकता है उस समय शायद अभी फैट, अभी समथिंग लाइक मे बी स्मोकिंग और मे बी ड्रिंक तो उस समय में करता था, कर ली थी, शुरू कर दी, पहले कर दी थी, चोरी चोरी। तो घर वालों का सपोर्ट कैसे था सर आपको उस समय कि घर वालों को कितना मालूम था कि ही इज नॉट डूइंग समथिंग बैड। सपोर्ट तो मालूम नहीं होता उस समय थोड़ा सा। मेरे घर वालों का सपोर्ट ये था कि लाइक लेट हिम वर्क आउट। वो कहते पढ़ाई करो, अब एक्सरसाइज करनी है, तो जिम गया, जिम छोड़ दिया, घर में डंबल का पेड़ आ गया तो मैं करता रहा डंबल। फिटनेस एजुकेशन के अलावा आपकी सर क्या ग्रेजुएशन मतलब क्या एजुकेशन आपकी जो वेबसाइट चेक कर लो। सॉरी मैं बैचलर्स मास्टर्स इसी फील्ड में की हुई है। मैं आपको क्या बताऊं, अब कैसे बताऊं कि आई डोंट से दैट आई एम द ओनली इंडियन राइट नाउ विद 10 फिटनेस सर्टिफिकेशंस फिटनेस में। ऑल अमेरिका के, ऑल टॉप। लेकिन आई एम नॉट ट्रेनर, ट्रेन नहीं करता हूं, मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं उन 8 बंदों को ट्रेन नहीं कर सकता दिन के अंदर, दैट्स नॉट माई रेंज। वो सर्टिफिकेशन सिर्फ 8 बंदों को ट्रेन करने के लिए नहीं है, वो मिलियंस को ट्रेन करने के लिए। दैट्स माई गोल। लेकिन शुरू मैंने सीपीटी से किया था, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, और जिम के अंदर ही आप ट्रेन करते हैं, राइट। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में था नहीं, दिस इज नॉट माई रेंज, लेट्स आई वांट हेल्प पीपल जो नहीं है यहां पर। यहां 2 क्लाइंट आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, दैट्स फाइन, यू जस्ट मेकिंग मनी समहाउ, योर पे चेक इज गोइंग ऑन, राइट, दैट्स फाइन। बट मेरा विजन हटके है, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मनी। आई वाज लाइक दैट वाज अवर स्कूल में था, अभी कॉलेज में, किसने पूछा आपको ना, तो उसमें कॉलेज में था, तो आप कॉलेज के साथ साथ क्या करते हैं, यहां हमें इंडिया में तो नहीं कोई करता जॉब, अमेरिका में कहते हैं पार्ट टाइम, यू जस्ट स्पेंडिंग 20 आवर्स समहाउ, इंटर्नशिप कर रहे हैं, इंटर्नशिप यहां भी होती है आजकल इंटर्नशिप, राइट। तो वैसा ही कुछ था कि आई वांट टू डू दैट, लर्न एंड देन अप्लाई। लेकिन सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है इन अमेरिका। यू कैन नॉट बी अ ट्रेनर इफ यू नॉट सर्टिफाइड, बिकॉज अगर आपको कुछ हो गया ट्रेनिंग देते समय, वो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम का ओनर, जो बड़े कॉर्पोरेट्स है, दे डोंट टेक यू बिकॉज यू डोंट हैव एजुकेशन। कल को आपको हार्ट पीट आ गई, यू डोंट हैव सीपीआर, आपको मालूम नहीं है ब्लड कैसे पंप करना है, हार्ट का प्रॉब्लम होती है लोगों को। यू नो मेक श्योर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कि अगर किसी को फर्स्ट हार्ट अटैक आया है या किसी का हुआ है तो क्या करेंगे आप? कैन यू डू फर्स्ट एड? हु कैन डू फर्स्ट एड? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न कि वो फर्स्ट एड आपने कैसे देनी है। क्राउड के अंदर कुछ एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टर मालूम नहीं कब आ रहा है, एम्बुलेंस कब आ रही है, यू हैव दैट, यू कैन गिव दैट फर्स्ट एड टू उसको कि वो ब्रीथ करे एंड देन फाइनल टेक करके हॉस्पिटल में। तो वो चीज जरूरी है। स्कूल कॉलेज के टीचर्स को दी जाती है कि बच्चे कुछ हो जाए, टीचर को मालूम हो। जब तक वो 911 से 10-15 मिनट लगेंगे, वो 10-15 मिनट का क्या करेंगे कोई? सो वो दैट्स समथिंग ट्रेनर के पास ये होना जरूरी है। इंडियन जो एजुकेशन चल रही है उसमें कहीं फिटनेस के बारे में और फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में बहुत कम बताया जा रहा है, बहुत कम है। और अगर बच्चों को जैसे बाहर फॉरेन्स में हम काफी देखते हैं कि लोग पहले ही बताना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग करनी है, ये आपको गेम लेनी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। आपने करना ही अब लोग, जब आपको मालूम है कि आपका बच्चा कि भाई ये एक स्ट्रेंथ है, वो कुछ कर रहा है, वो आपने पता करना है। उसको नहीं मालूम बच्चे को भी 5 साल का है, उसको हम देखा कि थ्रो बहुत अच्छी फेंक रहा है, ही जस्ट बॉल कर रहा है, यू नो दैट कुड बी क्रिकेटर। डिपेंड्स ऑन क्या करता है, किस फील्ड में है, अच्छा बोलता है, वो जो फील्ड है पेरेंट्स को पता होना चाहिए। तब यू हैव टू हायर व्हाटएवर एक्सपर्ट, और वो ट्रेनिंग कोचिंग ट्यूशन शुरू हो जाए, ना कि पढ़ाई इज डिफरेंट। आपको मालूम है, कहते हैं मेरे इंजीनियर बनना, डॉक्टर, हर कोई नहीं बनता, लेकिन ये चीजें बाहर आए। अब आपने देखना है, अगर आई कांट मेक माई किड की तुम्हें फिटनेस मॉडल बनना है, उसकी मर्जी है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि क्या उसकी क्या स्ट्रेंथ है। वो जो स्ट्रेंथ का अगर मुझे पता चल गया तो आई हैव टू हायर। हो सकता है वो गलत हो, लेकिन आई हैव टू डू दैट, टेक फर्स्ट स्टेप। बाद में पता चले 1 साल बाद कि वो ही इज डोमिनेटिंग समथिंग एल्स, ताकि जब वो टीनेजर पहुंचे ही शी रेडी फॉर टू कम्पीट ओलंपिक, स्पोर्ट्स, मे बी एक्टिंग, व्हाटएवर ये फील्ड है। बाद में खुद चूज करते हैं, बस आपने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, जब वो रेडी, उनको मालूम है क्या मॉल रेडी। जो जिम्नास्टिक करते हैं, रनिंग करते हैं, बिकॉज वो बचपन से पता चलता है सभी का। वो फील्ड में पेरेंट्स पुश करते हैं, वहां यूएस में करते हैं, यहां आप शायद आज की जनरेशन कर रही है, वो जरूरी है। अगर आप नहीं कुछ बन पाए, मेक श्योर आपके बच्चे बने, दैट्स समथिंग सेकंड स्टेप। वो ये बोलते हैं कि आपको फिट रहना है, फिट रहने के लिए जिम की जरूरत नहीं है। पर अब जैसे मैं घर पे जाता हूँ तो हमेशा वही जिम वर्क करता हूँ, डंबल्स वगैरह हैं, तो वो उसके लिए मना करते हैं। वो खाली कहते हैं कि रनिंग करो, थोड़ा खेलो, इस तरह से करो, तो वो आपको
मतलब आप फिट रहोगे, जिम की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए पेरेंट्स को कि ये मालूम होना चाहिए कि जिम भी जरूरी है। इस तरह से कि अभी तक मैं घर पे जाता हूँ तो मतलब जिम के लिए बोलते हैं कि क्या कर रहे हो ये एक्चुअली इमेज थोड़ी खराब हुई है हमारी जिम की। यू नो वी हैव कि आपके मसल्स वगैरह, अब बॉडी है वो सब है। हर कोई मसल बनाने के जिम नहीं जाता। नहीं, वो ये कहते That's the हैं first wrong part, right? वही कहते हैं कि आगे जाके आपको ही परेशानी होगी जब आप मतलब कि आपकी बॉडी जो पेन करेगी, इस तरह से होगा, इस तरह से चीजें, ये सब चीजें होंगी, वो सब ये बोलते हैं। पर अभी समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। उनको बैक एजुकेशन देनी शुरू करें। उनको बताएं, आई डोंट गो जिम टू बिल्ड मसल्स, आई वांट टू स्टे हेल्दी। मेरे जिम के अंदर मसल को छोड़कर अंदर क्या है? हार्ट, किडनी, ऑन पैनक्रियास, ब्रेन, आंखें, नेल, ये कहां से ठीक हो गए? ब्रेन कहां से काम करेगा? यू हैव टू वर्क आउट। स्ट्रेस हार्मोन्स, हार्मोन बैलेंस कैसे? यू हैव टू वर्क आउट फॉर दीज इंटरनल मशीनरी है। इसका वर्क, जिम जाने का सिर्फ एक ही बेनिफिट नहीं है, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस। मैं यहां पर आपको 36 गिना दूंगा। यू स्टे हेल्दी, नो रिस्क फॉर हार्ट डिजीज, नो रिस्क फॉर डायबिटीज लेटर ऑन, नो रिस्क फॉर ब्लड प्रेशर लेटर ऑन, राइट? नो थायराइड प्रॉब्लम, नो हाइपरटेंशन, नो द लोअर डिस्क प्रॉब्लम बिकॉज घर में उठाया किया, यू बी लाइक सप्लाइंग ब्लड फ्लो, ब्रेन शार्प। और बॉडी के अंदर जो मसल, अक्सर लेडीज के अंदर बोन और मसल अलग होता है बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ प्रोटीन। लिगामेंट्स के नीचे लिगामेंट्स वीक हैं। यू डोंट वर्क आउट ओनली टू बिल्ड मसल और लूज फैट, दैट्स इंडिविजुअल गोल। अगेन बोल रहा हूं, फिटनेस इस सभी के लिए है, चाहे वो एथलीट है, चाहे वो सुपर मॉडल है। जो मॉडल्स थे वो वर्कआउट मसल बिल्ड करते हैं, दे जस्ट बर्न कैलोरीज। जब रनिंग करते हैं, हार्ट के लिए क्या करते हैं आप? व्हेन यू रन योर हार्ट पंपिंग मोर ब्लड, हार्ट पंप ब्लड करेगा, मोर ब्लड सर्कुलेशन ट्रेवल आपकी बॉडी के अंदर, और बहुत ही जरूरी है। कार्डियो वेस्कुलर बहुत जरूरी है। रनिंग ट्रेडमिल कर लो, बाहर कर लो। रनिंग का मतलब फैट लॉस नहीं होता और वेट लॉस नहीं होता, ये भी बहुत क्रेजी मिथ है। अगर डाइट सही है, रनिंग क्या करेगी? रनिंग तो आप हार्ट के लिए कर रहे हैं। रनिंग बहुत तरह की होती है, स्लो, जॉगिंग, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटर सभी तगड़े होते हैं, उनका तो वेट गया नहीं, वो तो फिटनेस मॉडल से बड़े स्प्रिंटर्स, दे डू कार्डियो एवरी डे। कितनी बार स्प्रिंट करते हैं? दे हैव अ बिगर मसल देन फिटनेस मॉडल। देखिए यूएस के एथलीट्स भागते 100 मीटर के, अनबिलीवेबल। सो ये दिस इज अ क्रेजी मिथ, कार्डियो से होगा। नहीं, कार्डियो इज फॉर कार्डियोवैस्कुलर। लेट्स अंडरस्टैंड द कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट। फैट लॉस, मसल बिल्डिंग को बाहर निकाल दो। और सर ये भी बोलते हैं कि जो आप रनिंग करिए आपका स्टमक कम होगा, तो खाली वो हार्ट के लिए स्पेशली रनिंग से, रनिंग इज देयर इज नो स्पॉट रिडक्शन नहीं है। रनिंग से ऊपर होती है ना। आपका स्टमक कैसे कम होगा? आपका सब कुछ कम होगा, फेस से लेकर कैफ से लेकर सब कुछ, बिकॉज द ब्लड सर्कुलेशन नीचे से ऊपर तक जा रहा है। यू स्वेटिंग हियर, ब्लड ट्रेवल फ्रॉम टॉप टू डाउन ऑल ओवर बॉडी। अगर एनिमेशन मेरे पास हो, मैं दिखाऊं आपको कि किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है। जब हार्ट जब ज्यादा बम्प सप्लाई करे ब्लड, नॉर्मल कितनी होती है बीट? 70। जब 140 के बाद बीट चली जाए, योर ब्लड, योर हार्ट पंपिंग मोर ब्लड, कितनी गैलन करता है मालूम ही नहीं, कितनी मिलियंस है। और वो अच्छा है, आपके लेटर ऑन हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर किसी कोलेस्ट्रॉल वाले को भागना पड़े, उसकी ब्लॉकेज है, इट्स गोना बी लाइक बैकफायर बिकॉज हार्ट के चांस है फेलियर के। इसलिए जब ट्रेनर्स को के पास सीपीआर होना जरूरी है कि जो कोलेस्ट्रॉल का है उसको रनिंग ना करवाएं एकदम, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर। मेडिकल कंडीशन इज डिफरेंट। अगर ट्रेनर को मेडिकल कंडीशन के बारे में नहीं मालूम, यू डूइंग इट रॉन्ग। वो बंदा का हार्ट रुक सकता है बिकॉज जब रनिंग करते हैं, योर बॉडी, आपका यू पंपिंग मोर ब्लड, एंड अगर आपकी वेसल्स ब्लॉक है 10%, 20%, हमारे बुजुर्ग की 70-80% ब्लॉकेज है, वो कट करनी पड़ती है। तो हार्ट की जो वेट आर्टरीज है वो ब्लॉक होती है। वो ब्लॉक की तो ब्लड नहीं जाएगा ना, तो पंप कैसे करेगा? वो सप्लाई कम होगी। हमारे अंदर तो नहीं होगा। आप सब वी आर यंग राइट नाउ, रनिंग करते हैं तो रनिंग जरूर करें। सो बेसिकली टॉपिक से अलग चला गया मैं, बहुत ही जरूरी है। तो वर्कआउट सिर्फ हम मसल बिल्डिंग के लिए नहीं करते, मेरे घर वाले करते हैं, मेरी वाइफ करती है, वो मसल बिल्ड कर रही है। शी वांट्स टू स्टे हेल्दी, शी नीड्स टू, शी और ही व्हाटएवर बर्न डेली कैलोरीज। अगर आप दिन में कोई कॉफी ज्यादा पीगी, शुगर ज्यादा ले लिया, आपने कुछ ज्यादा खा लिया, तो आपने इवन कर दिया वर्कआउट कर। क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट 10,000 रुपीज है, और आपने उस पर 5,000 का परचेज किया और आपने उसको पे कर दिया, बैलेंस, कोई डेट नहीं आपके ऊपर। दैट्स हाउ द बेस्ट क्रेडिट आपका बनता है। कुछ आपने परचेज करना है, लोन नहीं होगा। आप क्यों? आपने वहां से परचेज किया और उसको अगले दिन उसी महीने की स्टेटमेंट में आपने पे कर दिया, तो बेसिकली आप डेट फ्री है। डेट कब होता है? जब खर्च चले जाए और लिमिट क्रॉस हो गई। इसका मतलब है आप खाई जा रही हैं, गलत चीज चल रही है, यू नो वर्किंग आउट, तो बैलेंस कैसे करेंगे? बिकॉज योर बॉडी इज अ बैंक,
एंड बॉडी फैट इज अ लोन ऑन योर बॉडी। बॉडी बैंक है, बॉडी फैट लोन है, एक डेट है आपकी बॉडी के ऊपर। जितनी बॉडी फैट ज्यादा है उतने आपके लिए क्या होगा, बैंकरप्ट। ज्यादा लोन है, ज्यादा क्रेडिट बढ़ जाए क्या होगा, यू बी बैंकरप्ट लेटर ऑन, ज्यादा हो गया कर्जा, राइट। जब आपकी बॉडी फैट ज्यादा होती है दे कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वो डेथ है आपकी बॉडी के ऊपर। सो जब आप वर्कआउट करते हैं यू बर्न जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज लिकर से मिली है आपको पार्टी में, इंडियन पार्टी, जो आपके एक्स्ट्रा बॉडी, हमारी बॉडी 2000 कैलोरीज सभी को मालूम होगा बैलेंस। फीमेल 1800 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज गाइज, अगेन डिपेंड्स ऑन योर हाइट, वेट, एज। कोई छोटा को बड़ा है, थोड़ी कैलोरीज बॉडी अलग चलती है, लेकिन जब वर्कआउट करते हैं यू बर्न कैलोरीज, थिंक दैट वे, यू डोंट बर्न, यू नो दैट्स नॉट अ मसल, यू बर्न कैलोरीज। मतलब आपके वो जो वेस्ट बॉडी के अंदर ग्लूकोज, जो ब्लड फ्लो में ग्लूकोज ज्यादा है और आप एक्टिव नहीं है, तो एंड अप आपकी बॉडी स्टोर कर देगी एज अ फैट। आपने कुछ खाया, व्हाइट राइस खाया आपने, सुबह भी खाया, दोपहर खाया, कुछ एक्टिविटी नहीं आपकी बॉडी के अंदर। व्हाइट राइस कहां जा रहे हैं, स्पाइकिंग इंसुलिन, क्रैशिंग डाउन, स्टोरिंग मोर बॉडी फैट। वो बॉडी फैट ना स्टोर हो, यू गो वर्कआउट एंड बर्न आउट। सो वो जरूरी है। सर एज यू सेड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्टडी, तो वही अब हमारी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अभी तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी है, मेरा फ्रेंड यहाँ पे है, उसका कोई क्वेश्चन नहीं मिला लिखने के लिए कि आपसे पूछना क्या है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। बट वी वांट एवरीबडी, हर किसी का गोल नहीं है कि वो पर्सनल ट्रेनर बने, बट हम चाहते हैं कि एटलीस्ट हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन जरूर हो जितने पर्सनल ट्रेनर के पास होती है। सो वी वांट यू टू स्टार्ट अ सीरीज जिसके अंदर आप एक सर्टिफिकेशन की जो बात कर रहे हैं, सो वी वांट यू टू सर्टिफाई अस by providing us the proper knowledge of all the anatomy, जो आपने स्टार्टिंग में बोला था किसी वीडियोस के अंदर कि यू रीड अबाउट एनाटॉमी, तो अगर वो एक सीरीज के थ्रू हमें सर्टिफिकेशन टाइप की कुछ नॉलेज मिले तो इट विल बी ग्रेट। मैं वीडियो बना दूंगा, आई विल मेक वीडियोस एंड लेट यू नो। एंड वन मोर थिंग इज दैट माय मदर इज सफरिंग विद यूरिक एसिड प्रॉब्लम, तो अगर उसकी यूरिक एसिड या कि लोग प्रोटीन नहीं पीना, क्या कहते हैं ना, प्रोटीन अपने लो, व्हाई हाँ कहते हैं प्रोटीन वाला यूरिक एसिड बना हुआ है, ये ना हो। I mean, doctor say, I mean, she's suffering from, how old is she right now? She's at 45. 45. So क्या मेडिसिन चल रही है? अभी तो बहुत डाउन आ गया है। कितना टाइम हो गया चल एसिड बनते को? 6 months अराउंड। मैं वीडियो बना दूंगा एक यूरिक एसिड, काफी लोग सफर कर रहे हैं, सो आई विल मेक वीडियो 5-10 मिनट की, और आपको मेडिसिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेसिकली, क्योंकि न्यूट्रिशन ही सब कुछ है, वही तो मेडिसिन है। सो सर्टिफिकेशन जरूर करें, अगर हम ट्रेनर बनना है नो प्रॉब्लम, डोंट वरी कि आपकी बैचलर है या नहीं है, you don't have to just study again. हो सके किसी ने, हाँ, awesome. आपको ट्रेनर गलत इन्फॉर्मेशन भी ना दे, या आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो सर जैसे कि आपके काफ़ी रेसिपीज में कुछ मैंने चीज़ें नोटिस करी हैं जो कि सर इंडिया में उसका यूज़ ढंग का नहीं है, जैसे कि आप बोल तो देते हो लेकिन वो नेचुरली ठीक नहीं है। जैसे कि बनाना, मैं बनाना परचेज करता हूँ, वो अगर मैंने आज अगर सुबह ले लिया तो कल सुबह तक वो सड़ जाता है। एग वाइट्स हो गया, सेम वही हाल है। एग वाइट्स अगर मैं लेता हूँ, फ्रेंड कहते हैं कि मत ले यार, इंजेक्टेड है, बीमार हो जाएगा तू। चिकन ब्रेस्ट लिया मैंने, तो मैंने रिपब्लिक ऑफ चिकन से लिया था, उन्होंने वो बोला कि नहीं रहने दे, ट्रेनर भी मना किया, अबे रहने दे भाई, केमिकल्स है, मर जाएगा, रहने दे। सो कैसे सर इन प्रॉब्लम से? नहीं, अब बनाने की बात कर रहे हैं, अब ये चीज मैं कैसे बताऊंगी भाई, वीडियो बना रहा हूँ, मैंने तो ये बताना है कि इंडिया में मिलता है। फर्स्ट थिंग इज, हो सकता है कुछ स्टेट, कुछ शहर में जैसे आपने बोला है सड़ नहीं जाता, आपको इजी फॉर्मूला बताता हूं, सड़ेगा नहीं, उसको चॉप करो, फ्रीजर में रख दो, जब कुछ खराब हो फ्रूट को फ्रीज कर दो, चिकन खराब होने वाला है फ्रीज कर दो, ये फ्रीज करने के लिए बनी है। एंड देन यू मेक स्मूदी, मैस होममेड मैस में बन रहा हो, वो आपकी आइस का काम करेगा, मैंने बोला हुआ है 2 वीडियो में, तो खराब नहीं होगा। क्या 1-2 बेसिकली केला, मुझे मालूम है कि वो येलो होकर डॉट डॉट होता है, राइट, वो तो खत्म होती है कंडीशन, और वो हाई ग्लाइसेमिक है, उस समय केले का जो शुगर लेवल है सबसे ज्यादा है। जब केला ग्रीन होता है लो ग्लाइसेमिक, जल्दी स्पाइक नहीं करेगा। जब सेंटर में आता है, यू हैव टू बाय ग्रीन, तो नहीं फायदा कोई नहीं, ग्रीन लेकर आपको रखना पड़ेगा 2-4-5 दिन। हाँ मुझे मालूम पकाते हैं यहां पर लोग, बट अगेन इसका सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप चॉप करें, खराब होने वाला है उसको फ्रीजर में रख दें, ओट्स में नहीं पड़ेगा लेकिन स्मूदी में काम आएगा। लेकिन आप रोज ओट्स खाते हैं तो 2 के लिए ज्यादा परचेज ना करें ना, बाय 2 करें फिर। अब इसका यही सोल्यूशन है।